Welcome to the lecture of mathematics. This is the third video of chapter matrix. Till now we have completed almost three topics. The first one is definition of this matrix. The second one is order of matrix, and the third one is types of matrix. And this is also third matrix. Continue with the third topic, types of matrices. ZEE topic 1, types of matrix. Why I have given this ZEE topic 1? Because this all matrix that we are discussing right now are not covered in NCERT books. Okay, so the first one is horizontal matrix. The name itself says what does it means. Whenever the matrix is like in the form of horizontal, then it is in the category of horizontal matrix. How it looks like, let me give an example. Say it is 1 2 3 4 5 6. Here you can see it is not look like square, it is look like a rectangle, and here we got some kind of horizontal format. Then it is in the category of horizontal matrix. But the mathematical definition is what? This is what the geometrical definition, that horizontal means what, and based on that how we can identify this matrix. But how we can say it is a horizontal matrix using mathematics? Then using mathematics we can say, if we have number of rows, see number of rows and number of column, if number of rows and number of column are not equal and number of rows are always less than number of column, see number of row always we can say this is m cross n. Here m cross n become 2 cross 3. If number of rows and number of column in which number of row is always less than number of column, then it is in the category of horizontal matrix. See the first one, number of row is less than number of column, and the second is always it is not a square matrix, obviously. Okay, if it is square matrix then definitely m and n both are equal, but here it is not. Again, vertical matrix, the name itself again says that what does it mean. Vertical means it is in the form of vertical geometry. Say it is like 1 2 3 4 5 6. See, this is vertical matrix in which number of rows and number of column are not equal and number of row is always more than number of column. See here it is 3 cross 2. If it is m cross n, then definitely number of row is always more than number of column, then it is in the category of vertical matrix, and again it is not square matrix. Triangular matrix, well, triangular matrix is somewhat important compared to the vertical and horizontal matrix. Definitely these are not that much of famous topic, but although we need to know how we can represent triangular matrix. See, triangular matrix is what, if we have matrix like, let me give an example first and then after we'll see what it is. And in which second topic, that is it is always a square matrix, that is always happens, means if it is a square matrix then and then only we can find triangular matrix. So in square matrix में ही हम triangular matrix create कर सकते हैं. So triangle कैसे बनेगा, जैसे समझ लो यहाँ पे 5 6 7 इसे लिख देता हूँ, and the rest of elements if it is 0, it means here we are getting kind of triangle. Let me use another pen. See, this is triangle. Okay, so if you can draw triangle in upside, or maybe we can draw triangle in downside. It means समझ लो suppose यहाँ पे 4 5 6 है, whatever I can write here in a diagonal portion, and if we have element in lower side of diagonal and if we have 0 0 0 in upside, then we can draw triangular portion in downside. डाउनसाइड की तरफ ट्रायंगल बना सकते हैं. तो ये या तो ट्रायंगल अपसाइड बन सकता है या तो ट्रायंगल डाउनसाइड बन सकता है. तो अगर ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो उसमें हम ट्रायंगल बना सकते हैं और डायगोनल के ऊपर या फिर डायगोनल के नीचे, डायगोनल के ऊपर या फिर डायगोनल के नीचे
दोनों में से कोई एक जगह पे ओनली जीरो होंगे, देन इट इज ऑलवेज इन द कैटेगरी ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखा है देखो, ईच एलिमेंट अबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल जो ये है उसके नीचे और उसके ऊपर जब भी जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट, ईच एलिमेंट इफ इट इज जीरो, इफ दे आर जीरो, देन इट इज इन द कैटेगरी ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल तो हमने देख लिया। से हियर ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन इज अपर ट्राइंगुलर पोर्शन एंड दिस वन इज लोअर ट्राइंगुलर, because the next topic is again upper triangular matrix and lower triangular matrix that we have seen the example of both। ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि ट्राइंगल अपर साइड ऊपर की साइड बन रहा है और यहाँ पे ट्राइंगल नीचे की साइड बन रहा है, दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड एज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सी डेफिनेशन इज व्हाट, ईच एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। सी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है अगर वो जीरो है तो वो बन जाएंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और अगर each element above the principal diagonal, above the principal diagonal के ऊपर this each elements if these are zero then definitely it is lower triangular matrix। let me give one more examples। say it is 3 7 2 4 5 6 and suppose here we got 0 0 0। see here again we found this triangle upside, that is why it is upside, that is upper triangular matrix। and if you want to take example of lower triangular matrix then say 2 0 4 7 9 2 and 0 0 0। see here we got lower triangular matrix। the definition, यहाँ पे जो definition उसमें clearly लिखा है कि अपर डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट या फिर नीचे वाले एलिमेंट ज़ीरो है। डायगोनल के अंदर क्या हो सकता है दैट इज़ नॉट द मैटर। ईयर वी हैव यहाँ पे जब हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पे इसमें ज़ीरो यहाँ पर लिखा है, इट डजंट मीन दैट कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ज़ीरो ले सकते हैं यहाँ पे कोई भी जगह पे, एक या दो या तीन व्हाटएवर, बट द मेन थिंग इज़ व्हाट, ये तीनों ज़ीरो है। डायगोनल के ऊपर वाले तीनों हमेशा ही ज़ीरो होंगे और इसमें डायगोनल के नीचे वाले तीनों हमेशा ही ज़ीरो होंगे। दैट इज़ व्हाट द मेन थिंग। ओके, इन जनरल कैसे लिख सकते हैं दैट A इक्वल टू Aij n क्रॉस n, वाई बिकॉज इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज वाई n क्रॉस n, वेर Aij इक्वल टू 0, Aij मीन्स एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है उसके, ये मैट्रिक्स से जो एलिमेंट है, मैंने बताया था अगले वीडियो में कि Aij क्या डिनोट कर रहा है, दैट इज व्हाट एलिमेंट, ये जो सभी एलिमेंट है वो डिनोट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। कब, ये कंडीशन में, और ये कंडीशन क्या है, i ग्रेटर देन j मीन्स i क्या होगा, नंबर ऑफ रो एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम। तो कोई भी एलिमेंट का रो उसके कॉलम के नंबर से बड़ा होगा तब समझ लो ये वाला जो ज़ीरो है, ज़ीरो कब आ रहा है, ये वाला यहाँ पे, तो ज़ीरो यहाँ पे इट मीन्स व्हाट कि ये कहाँ पे है, सेकंड रो में एंड फर्स्ट कॉलम में। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि i इक्वल टू 2 है एंड j इक्वल टू 1 है, तो 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसके लिए भी देख सकते हैं i इक्वल टू 3 है एंड j इक्वल टू 1, तो i हमेशा ही i इक्वल टू 3 इज़ ग्रेटर देन j इक्वल टू 1। सो जो एलिमेंट है वहाँ पे, और यहाँ पे भी देख सकते हैं दिस वन इज सेकंड रो, तो ये जो ज़ीरो है उसमें i की वैल्यू 3 है एंड j की वैल्यू 2 है। तो जो एलिमेंट में i की वैल्यू j के वैल्यू से बड़ी है वो सभी में ज़ीरो आएंगे। अगर ये तीनों ज़ीरो है, ठीक है, तभी ऐसे वाले कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। दिस इज व्हाट द सिंपल डेफिनेशन। वी ऑलवेज नीड टू फोकस ऑन दिस ज़ीरो, आइदर दिस ज़ीरो और दिस वन, ठीक है। then and then we can consider those matrix in the category of upper triangular matrix or lower triangular matrix. Clear? Note 1 में क्या है, minimum number of zeros in an upper triangular matrix or lower triangular matrix of order n cross n is equal to this one, what it is, कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिनिमम पॉसिबल है। ओके, ये अगले वाली एक नोट्स जिसमें हमने आई थिंक डायगोनल मैट्रिक्स
हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल है वो सब डिस्कस किया था, और उसी तरह की नोट है ये। तो यहाँ पे क्या बोल सकते, समझ लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी ले लो, दोनों में सिचुएशन सेम ही है, जीरो सिमिलरली ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, देन हाउ कैन वी फाइंड, से लेट मी टेक वन एग्जांपल ऑफ 3 क्रॉस 3, यही एग्जांपल ले रहे हैं, बट उसमें मिनिमम से मिनिमम मुझे जीरो रखने हैं, बराबर। तो ये 5 6 7 ले लिया, मतलब यहाँ पे मैंने कहीं पे जीरो रखे नहीं, और यहाँ पे मुझे कंपलसरी जीरो रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि मुझे या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। मैंने यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दिया है, तो ये 3 यहाँ पे, ये जो 3 है उसको कंपलसरी मुझे ज़ीरो रखने ही पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें कम से कम 3 जीरो आएंगे, ठीक है। अब ये 3 जीरो को मैं मैथमेटिकली कैसे काउंट करूँ, ये तो 3 क्रॉस 3 का है तो 3, तो कोई बोलेगा बंदा सर 3 क्रॉस 3 है ना, तो उसमें 3 जीरो आएंगे, तो 4 क्रॉस 4 में 4 जीरो आएंगे, 5 क्रॉस 5 में 5 जीरो आएंगे। ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट लाइक दिस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इसको मैंने इरेज कर दिया। चलो ये कैसा है, मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं, तो इसको ऐसे समझ लो यहाँ पे अगर मैंने 4x4 का ले लेता हूँ। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, ठीक है ना। ये बन गया ना एक तरह का, ये डायगोनल वाले एलिमेंट, उसके ऊपर की साइड एक ट्रायंगल बन रहा है, उसके नीचे से भी जीरो है, क्लियर। हाँ, तो इसमें कितने जीरो बने, चलो मैंने बताया था ना 3 क्रॉस 3 में 3 बने, तो 4 क्रॉस में 4, ऐसा नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये वी गॉट 6 जीरोस। देन हाउ कैन वी काउंट, तो उसको काउंट करने के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे हमने डायगोनल में काउंट किया था, कि डायगोनल में कैसे काउंट किए थे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। तो डायगोनल में मैंने ऐसा बताया था कि चलो यहाँ पे ऊपर की साइड या फिर लोअर साइड, ये तीनों जीरो, ये मतलब यही जीरो नहीं है, सिर्फ मिनिमम नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं, तो इसको हम जीरो नहीं लेंगे। अगर जीरो नहीं लेते हैं तो मिनिमम से मिनिमम जीरो ऊपर की साइड या फिर लोअर की साइड, दोनों साइड आने ही वाले हैं। तो उसको काउंट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बना दो, चलो वो n² है, उसमें से सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट निकाल दो, तो उसको मैंने बता दिया कि n² - n कर दो। तो हमको क्या मिलेगा, तो मुझे अपर वाले साइड के जीरो एंड नीचे वाली साइड के जीरो, ये दोनों तरफ की साइड वाले जीरो मिल जाते हैं, ऊपर वाली साइड के जीरो या फिर एंड नीचे वाली साइड के जीरो मिल जाते हैं। बट अगर मुझे सिर्फ ऊपर वाली या सिर्फ नीचे वाली साइड के जीरो काउंट करने हैं, तो आप देख सकते हो ऊपर वाली साइड के जीरो एंड नीचे वाली साइड के जीरो सिमिलर ही है, तो उसके हाफ कर देता हूं मैं, हाफ। इफ आई विल टेक डिवाइडेड बाय 2, देन डेफिनेटली कोई एक तरफ की साइड के जीरो काउंट होके बाहर आ गए। तो दैट इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ n² - n/2, सिंपल। सो ये फॉर्मूला वैसे तो सिंपल ही है, अगर समझ में ना आए तो मुझे एक बार लाइव वीडियो लेक्चर में दिखा देना, समझा देना, मतलब पूछ लेना, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कैलकुलेशन मेथड of finding minimum number of zero in upper triangular matrix or lower triangular matrix, ठीक है, n² - n/2। and if you have 4 cross 4 matrix and if you want to find minimum number of zeros, then definitely it is simple, 4² - 4/2, that is 16 - 4/2, which is 12/2, which is 6. So minimum number of zeros is R6. Maximum number of distinct element in an upper diagonal matrix or lower diagonal matrix of order n cross n. Okay, maximum number of distinct element in an upper triangular matrix. Let me take one example of again 3/3 का ले लेता हूँ, और maximum number of distinct element लेने मुझे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह के एलिमेंट कितने बन सकते हैं, तो मैंने जितने पॉसिबल है उतने अलग अलग एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 से 4 5 6, और इसको मुझे कंपलसरी जीरो रखने पड़ेंगे। चलो, तो ये कितने एलिमेंट हुए, तो चलो ये सब मिलके एक एलिमेंट हुआ, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज वन एलिमेंट। वाई, बिकॉज इसमें सिर्फ जीरो ही यूज हुआ। नाउ वी नीड टू काउंट ये डायगोनल वाले एलिमेंट। लेट मी टेक अनदर पेन। समझ लो मुझे ये डायगोनल वाले एलिमेंट काउंट करने हैं,
कि डायगोनल में कितने एलिमेंट है, जितने एलिमेंट डायगोनल में है उतने अलग अलग तरह के टाइप्स के एलिमेंट बन जाएंगे, और मुझे अपर ट्रायंगुलर अपर मतलब डायगोनल के ऊपर की साइड के जितने एलिमेंट है वो काउंट करने हैं। तो मैंने अभी बताया ना, इसको हम कितने एलिमेंट गिन सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। वाई? बिकॉज डायगोनल के ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड कितने एलिमेंट होते हैं, और यहाँ पे मैं बनाया ना ये नंबर ऑफ जीरोज है, और कहाँ पे, डायगोनल के ऊपर के साइड या फिर नीचे की साइड के नंबर ऑफ जीरो है। अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया इस तरह से। तो मतलब अपर साइड के एलिमेंट कितने हो सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। ठीक है, देन डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं, तो हम बोलेंगे n। अगर n क्रॉस n है तो 3 क्रॉस 3 में 3 है, 4 क्रॉस 4 में 4 है, तो n क्रॉस n में n है, और ये हो गया 1 नीचे की साइड। तो ये तीनों का एडिशन हो गया ना आंसर, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू प्लस n प्लस 1। These are maximum number of distinct element, possible distinct elements in upper triangular matrix और lower triangular matrix. Simple. फॉर एग्जाम्पल अगर 5 क्रॉस 5 का कोई मैट्रिक्स है तो उसमें कितने बना सकते हैं हम, यही फॉर्मूला में रख दो वैल्यू, 5 स्क्वायर माइनस 5 बाई टू प्लस 5 प्लस 1। 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 5 विच इज 20, 20 बाई टू दैट इज 10 प्लस 5 प्लस 1 6 दैट इज 16। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने पॉसिबल है, 16। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक 4, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। वेल इट इज़ सो सिंपल, बट हाँ इसमें क्या ध्यान रखना है वो मुझे आपको बताना ज़रूरी है, और आपको वही फोकस करना है। वैसे दिखने में तो बहुत इजी टॉपिक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मीन्स व्हाट, अगर दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, वो इक्वल कब होते हैं, आर साइड टू बी इक्वल इफ़ ये दो कंडीशन में इक्वल होंगे। दोनों कंडीशन क्या है, उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए, देयर ऑर्डर आर सेम। दूसरा, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल मीन्स, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल मीन्स ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। व्हाट इट इज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता क्या है, लेट मी टेक वन एग्जांपल। समझ लो यहाँ पे मैंने ले लिया A1 B1 A2 B2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल A2 कैपिटल B2। तो अगर ये दो मैट्रिक्स सेम है, इक्वल है, ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो क्या क्या लिख सकते हैं हम, तो ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकते हैं, तो पहली कंडीशन है उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए। हाँ, यहाँ पे दोनों के ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो ये दोनों सेम हो गए। दूसरा, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स व्हाट, कि ये समझ लो A1 है और ये कैपिटल A1 है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, होने ही चाहिए। तो मतलब A1 स्मॉल A1 इक्वल टू कैपिटल A1 होना चाहिए, स्मॉल B1 इक्वल टू कैपिटल B1 होना चाहिए। मतलब पहला एलिमेंट यहाँ पे तो उसका पहला एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे आ गया, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इट मीन्स व्हाट, कि सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। मतलब ये B1 इक्वल टू कैपिटल B1, A2 इक्वल टू कैपिटल A2 एंड B2 इक्वल टू कैपिटल B2। वंस अगेन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि A1 इक्वल टू कैपिटल A1, B1 इक्वल टू कैपिटल B1, A2 इक्वल टू कैपिटल A2 एंड B2 इक्वल टू कैपिटल B2। वंस अगेन क्या बताया मैंने, कैपिटल A1 स्मॉल A1 इक्वल टू कैपिटल A1, स्मॉल B1 इक्वल टू कैपिटल B1, A2 इक्वल टू कैपिटल A2 एंड स्मॉल B2 इक्वल टू कैपिटल B2। एक चीज़ खास ध्यान जो रखनी है हमको, वो एंड है। एंड का मतलब क्या हुआ कि ये चारों के चारों एक साथ में सेटिस्फाइड होने चाहिए। ओके, एक साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ पे और लिख दिया तो उसका क्या मतलब होता है, और लिख देता हूँ उसका मतलब ये हो जाता है, समझ लो यहाँ पे 2 0 3 4 है। कोई बंदा बोलेगा सर आपने और लिखा होता तो क्या होगा, तो और लिखा होता तो कोई बंदा ऐसा भी सोच सकता है कि 2 इक्वल टू 2 और 0 इक्वल टू 5 और 3 इक्वल टू 3 और 4 इक्वल टू 4। यहाँ पे और कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हाँ, 2 इक्वल टू 2 है, या फिर 0 इक्वल टू 5 है, या फिर 3 इक्वल टू 3 है, या फिर 4 इक्वल टू 4 है। मतलब अगर एंड नहीं लिखा है तो यहाँ पे, अगर मैंने एंड नहीं लिखा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई नहीं, मतलब सभी के सभी एक साथ में इक्वल नहीं हुए। देखो ये वाली कंडीशन यहाँ पे अगर एंड लिखा है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, मतलब चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। इसमें से एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो भी वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। दैट इज वाई इफ आई वांट टू टेक
इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट, एंड का मतलब ही होता है इंटरसेक्शन, मतलब चारों की चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तभी मैं इक्वल मैट्रिक्स बोल सकता हूँ। सो टू मेक इट स्पॉट, इतना इसको स्क्वाट बनाने के लिए बस आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा ही है, बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एंड है, बस क्या है, एंड है, ये सभी एंड है, ठीक है। चलो वैसे बस इसको आप एग्जाम्पल के अंदर भी ज़्यादा समझ सकते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। चलो ये लास्ट टॉपिक, उसके बाद डायरेक्टली एक्सरसाइज आएगी। Symbolically, if two matrices A and B are equal, then directly we can write capital A equal to capital B. This is for simple things. For example, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, आप देख सकते हो, तो ये दोनों में सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, 2 2 इक्वल है, 3 3 इक्वल है, 0 0 इक्वल है, 1 1 इक्वल है। बट ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, वाई? बिकॉज 3 इक्वल टू 2 नहीं पॉसिबल होगा, 2 इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं होगा। भले ही ये 0 0 इक्वल और 1 1 इक्वल हो, बट ऊपर वाले दोनों एलिमेंट इंटरचेंज करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। मतलब कोई बोलेगा बंदा कि सर इसमें 3 2 0 1 यूज़ हुआ, इसमें भी 3 2 0 1 यूज़ हुआ, बट पोजीशन डज मैटर, यहाँ पे पोजीशन भी मैटर करेगी, क्योंकि ये 3 और ये 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है और वो दोनों एक साथ में इक्वल होने चाहिए। ये 3 और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये नहीं होगा, ये दोनों 3 इक्वल है, तो इट डजंट मीन दैट दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल। ओके, सो इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड इफ देयर ऑर्डर आर इक्वल, देन मतलब हम उसी को बोलेंगे वो इक्वल मैट्रिक्स है। मतलब कोई बंदा बोलेगा सर इसको, ऑर्डर की बात इसलिए मैंने की कि चलो A B C D, और कोई बोलेगा सर ये A B C D 0 0 0 0 0 ये वाला इक्वल है क्या दोनों? तो हम बोलेंगे नो, इसके ऑर्डर सेम नहीं है। कोई बोलेगा सर ये इक्वल जैसा ही दिख रहा है, देखो ये ABCD यूज़ हुआ, इसमें भी ABCD यूज़ हुआ, बस इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट 0 है। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट 0 तो 0 का क्या मीनिंग होगा? इट मीन्स कि 0 मीनिंगलेस है, तो फिर हम इसको इक्वल बोल सकते हैं। बट मैं बोलूँगा नहीं, वाई? बिकॉज 0 डज मैटर, वाई? बिकॉज इट इज़ गिविंग पोजिशन, और अगर पोजिशन कुछ अलग बता रही है तो वो पोजीशन के हिसाब से वो मैट्रिक्स का जो भी ऑब्जर्वेशन का डेटा बना है और ये जो मैट्रिक्स के ऑब्जर्वेशन का जो भी डेटा बना है वो दोनों अलग अलग सिचुएशन के हैं। मतलब प्रैक्टिकली, अगर टू बी फ्रैंक प्रैक्टिकली बात करूँ तो मैंने बताया था शुरुआत में, लेक्चर की शुरुआत में, ये वाला नहीं, लेक्चर वीडियो लेक्चर 1 के शुरुआत में बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स बन रहा है तो कैसे बन रहा है, वी आर मेकिंग काइंड ऑफ मैट्राइसिस। कैसे बना रहे थे हम लोग? ऑब्जर्वेशन के, एक मिनट, यस, सो मैं कहाँ पे था? यस, एग्जाम्पल 4 में है ना। मतलब ये मैट्रिक्स के बारे में बता रहा था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए तो उसके ऑर्डर भी इक्वल होंगे। मतलब मैं मैट्रिक्स के बारे में ये बता रहा था कि मैट्रिक्स अगर बन रहा है तो कैसे बन रहा है, तो कोई ऑब्जर्वेशन से बन रहा है, कोई सर्वे का रिजल्ट हम जो बना रहे हैं, या फिर कोई भी इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है उसके बेस से बना रहे हैं। तो अगर इक्वेशन के कोफिशिएंट अलग है या फिर कहीं पे कोफिशिएंट कोई जगह पे 0 0 आ रहा है, इट मीन्स कि वो 0 की कोई गिनती नहीं होगी। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो 0 की कोई गिनती नहीं होती है। सो 0 डजंट मीन 0 कम्स, कोई 0 कोई जगह पे आ रहा है तो वो कोई पोजीशन दिखा रहा है, मतलब वो पोजीशन पे क्या, या फिर वो कोई डेटा या कोई रीडिंग की वैल्यू 0 हो सकती है। सो 0 भी मीनिंग के साथ ही बना होता है और उसकी पोजीशन भी मैटर कर रही होती है। सो इफ़ यू हैव काइंड ऑफ मैट्रिक्स इन विच इफ वी डजंट हैव टू मैट्रिक्स टू ऑर्डर इक्वल, देन वी कांट से दैट इट इज़ अ इक्वल मैट्रिक्स। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, नॉट, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल 4 है। वैसे दिखने में तो सिंपल ही दिख रहा है, वैसे टफ दिख रहा है, बट इट इज सिंपल। वाई? बिकॉज ये दो मैट्रिक्स इक्वल दिखाया है। इफ दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल, दिस वन इक्वल टू दिस वन, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C X Y and Z, okay. So if you want to find the value of A B C D X Y Z, then we can just simply compare corresponding element. As we can see, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है बिकॉज इसके ऑर्डर भी इक्वल है और सब एलिमेंट है वो भी इक्वल है। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, x+3 को हम 0 के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उन लोग ने सामने से ही दे दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? अगर A = B है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? उसके ऑर्डर सेम हो गए एंड उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो गए। तो यहाँ पे अगर A = B है तो उसके क्या क्या लिख सकते हैं? उसके ऑर्डर सेम है
और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करें x प्लस 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स कि x इक्वल टू -3। फिर सेकंड एलिमेंट z प्लस 4 इक्वल टू 6, तो z प्लस 4 इक्वल टू 6, तो उसका मतलब हुआ z इक्वल टू 2। सभी जगह पे एंड इसीलिए लिख रहा हूँ कि अगर मन समझ लो कि कहीं पे एक दो वेरिएबल अलग अलग, दो वेरिएबल वाले इक्वेशन अगर आ गए तो वो दोनों वेरिएबल वाले इक्वेशन को हम एक साथ में सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से सिचुएशन नहीं आएगी, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है। थर्ड एलिमेंट 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2, अगर ये दोनों इक्वल है तो y क्या बन जाएगा, 2y इस तरफ लेंगे तो 3y माइनस 2y, दैट इज y इक्वल टू 2 माइनस 7 विच इज -5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, देन -6 इक्वल टू -6, गुड, चलो वो भी इक्वल है, मतलब ये -6 इक्वल टू -6, उससे कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिली, चलो ठीक है कोई बात नहीं। a माइनस 1 इक्वल टू -3, ओके, a माइनस 1 इक्वल टू -3, हियर वी आर गेटिंग a इक्वल टू -3 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज -2, देन 0 इक्वल टू 3c प्लस 2, सो c बन गया -2/3, देन b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4, ओके, b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4, देन व्हाट वी गेट, b इक्वल टू say b equal to -7, okay, if I am not wrong, then okay, so we get all the value, b की बन गई, c की बन गई, abc बन गया, x बन गया, y बन गया, and z बन गया। so here we have found all the variable abc x y z। so ये वाला इक्वेशन वैसे तो इजी है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो कोई भी वेरिएबल फाइंड करने के लिए वो लोग पूछेंगे। ओके, यहाँ पे भी अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सी, इसको इसके साथ कंपेयर करो, 2a प्लस बी इक्वल टू 4, देन a माइनस 2b इक्वल टू 3, a माइनस 2b इक्वल टू -3, ये दोनों को सॉल्व कर लो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो, एंड ए बी फाइंड कर लो, उसमें से ए बी फाइंड कर लो। सिमिलरली 5c माइनस डी इक्वल टू 11, and 4c plus 3d equal to 24, 4c plus 3d equal to 24, again solve it and find c and d। okay, so these are again simple questions, here we have always two matrix and they are always equal, ऐसा दिखाया होगा, and using those two matrix we need to find some variable like a b c d or x y z or something like this। दिस इज एक्सरसाइज 3.1, उसका क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं। चलो, वैसे ये एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इजी ही है, आज मतलब इस वीडियो तक जितने भी एग्जांपल हमने सॉल्व किए हैं या फिर जितनी भी थियरीज हमने देख ली उसके बेस से ही सभी एग्जांपल बने हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली सभी एग्जांपल के बेस से ही बने हुए हैं। सो आज तक के एग्जांपल अगर 1 बाय 1 आपको क्लियरली आ रहे हैं तो फिर ये एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में भी कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में चलो हिंट दे देता हूँ, एंड इफ़ पॉसिबल यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सभी होमवर्क में आप एक बार ट्राई करो, अगर नहीं आ रहे हैं तो हम नेक्स्ट वीडियोस में उसको सॉल्व करवाएंगे। चलो, क्वेश्चन 1, द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस वन, ये मैट्रिक्स दिया है, और चलो मैट्रिक्स का नाम क्या है, तो इसमें कितनी रो है, 3, हियर वी हैव 3 रोज, सी आप देख सकते हैं 1 2 3, और कितने कॉलम है, 4, 1 2 3 4, सो इट इज कंसिडर्ड एज 3x4 मैट्रिक्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 3x4 मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 3 × 4, दैट इज 12, है ना, 3 4 12, एंड राइट द एलिमेंट दिस वन A13। A13 क्या बन गया, चलो A13 का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो सॉरी ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, मतलब ये हो गया ना। ओके, सो 19 इज कंसिडर्ड एज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो A13 हो गया 19। A21 मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 35 इज इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ओके, सो 35। Similarly, A33 comes in third row, third column, -5. A24, second row, fourth column, second row,
सेकंड रो फोर्थ कॉलम, मतलब ये वाला 12 हो गया सेकंड रो का और फोर्थ कॉलम का 12, एंड A23 मीन्स सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 5/2। सो ये सभी आपको प्रैक्टिस एलिमेंट के ये डिनोटेशन की करवा रहे हैं एक्सरसाइज वाले, मतलब बुक वाले। सो दीज आर अगेन सिंपल क्वेश्चन। If matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? What if it has 13 element? Okay, first पहले ये वाला क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, what are possible orders, then after we'll think of this. If we have 24 element, तो मैंने बताया था एग्जाम्पल में ही कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहले इसका फैक्टर बना दो, 1 होगा, 2 होगा, 3 यस 3 8 जा, 4 यस 4 6 जा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 यस, 9 10 11 12 यस 12 होगा, एंड देन 24। तो मैंने बताया था लास्ट एंड फर्स्ट को कंसिडर कर लो साथ में, पहले सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, एंड फोर्थ लास्ट। तो क्या क्या बना, कितने पॉसिबल है तो हम गिन सकते हैं 1 क्रॉस 24 एंड 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12 एंड 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8 एंड 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 4। मतलब 1 एंड 24 वाली पेयर में 2 बने, 2 एंड 12 वाली पेयर में 2 बने, 3 एंड 8 वाली पेयर में 2 बने, एंड 4 एंड 6 वाली पेयर में 2 बने। सो 2 2 2 ऐसे 8 बन गए। सो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आर, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स के अगर आंसर की बात की जाए, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, तो उसका आंसर होगा 8। बट कौन कौन से आएंगे तो मैंने बता दिया ना, 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1। वैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट फिर भी अगर हमको जानना है कि कौन कौन से है तो 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, देन 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, एंड 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4। वैसे कोई बंदा बोलेगा सर इसमें जितने एलिमेंट जितने फैक्टर बने उतने ही, अगर हम समझ लो इतने ही बना दे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर तो चल जाएगा क्या? तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, नॉट एवरी टाइम। उसके लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। चलो लेट मी टेक वन एग्जांपल ऑफ 25। चलो अगर 25 है तो 25 में क्या पॉसिबल होगा? 1 2 होगा नहीं, 3 4 5, यस 5, देन 6 7 8 9 10, 10 नहीं होगा, देन डायरेक्टली फिर 25 आ गया। चलो ये बहुत छोटा सा एग्जांपल बना, लेट मी टेक वन मोर, दूसरा कोई ले लेते हैं। वैसे चलो इसमें भी बना ही देते, दूसरा भी लेके चलो एक 36 ले लेते साथ में। तो इसमें कितने बने? चलो कोई बोलेगा सर इसमें 3 बनेंगे ना, 3 एलिमेंट है, 3 फैक्टर है तो 3 बन जाने चाहिए, बट नहीं। देखो एक 1 क्रॉस 25, 25 क्रॉस 1, एंड एक ये खुद के साथ ही बनेगा 5 क्रॉस 5 का, उसका भी मल्टीप्लिकेशन 25 होता है। 5 क्रॉस 5 इज ऑल्सो 25। सो यस वी हैव गॉट 3, सॉरी might be. Let me take one more example so that we can clarify. Yes, 1 2, then 3 4 5 6 6, yes 7 8, no 9, yes, then 12 18 and 36. okay, 1 and 6 के साथ एक होगा, 2 and 18 के साथ, then 3 और 12, then 4 6 था, 9 4 था, yes, and this one is 6. so कितने बने? yes 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 इतने ही बनेंगे। चलो चलो चलो, so this is what the final things। हाँ, इसमें अगर ऑर्डर बनाने हैं तो यहाँ पे 4 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 4 ऐसे बन जाते हैं। बट अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं भी, अगर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर बनाना तो सिंपल है, बट अगर कौन कौन से ऑर्डर बनाने होंगे तो मैं भी कोई बंदे को ये वाला 5 क्रॉस 5 माइंड में नहीं भी आ सकता है। जैसे इसमें 6 क्रॉस 6 वाला एक पॉसिबल है, वो मैं भी माइंड में नहीं आ सकता। सो लेट मी जनरलाइज इट। इफ यू वांट टू फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर देन इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर। ओके, नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर, I can generalize it, number of possible factor। वो कितने हैं? 8, so that is why it is 8। और if कैसे बनाने हैं तो उसकी मेथड भी मैंने बता दी आपको। ओके,
चलो सॉरी, और हाँ इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन भी था। इसमें क्या था, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर 13 एलिमेंट है तो क्या, 13 एलिमेंट है तो पॉसिबल नहीं है ना। 13 एलिमेंट पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि जैसे कोई भी नंबर रहेंगे, मतलब कोई भी मैट्रिक्स रहेगा, वो मैट्रिक्स में what if it has 13 element, yes, number of possible orders are 2, yes, 13 क्रॉस 1 and 1 क्रॉस 13, दो ही पॉसिबल होंगे, कि उसके दो ही फैक्टर बन जाएंगे, सॉरी 1 and 13, सो 1 क्रॉस 13 and 13 क्रॉस 1, तो उसका आंसर यही आएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आर 2। वाई, बिकॉज वी कैन क्रिएट काइंड ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी H I J K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 J K L M। तो ये एक बन गया मैट्रिक्स, कौन सा, तो ये बन गया हमारा 1 क्रॉस 13 वाला, ये एक मैट्रिक्स पॉसिबल है। और दूसरा ऐसे ही कोई कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, A B C D करके अप टू M, तो ये वाले बन जाते हैं। इसमें 13 रोज है एंड 1 कॉलम है। So we got this kind of element, this kind of matrix if we have 13 elements. So we have only row matrix and column matrix possible if we doesn't have another factor, none other than the number itself and 1। अगर number itself और 1 के सिवा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है तो उसके हमेशा ही उसके पॉसिबल ऑर्डर्स या फिर उसका वो जो मैट्रिक्स है वो हमेशा ही रो मैट्रिक्स या फिर कॉलम मैट्रिक्स ही रहेगा। सो यार ये सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हमको क्या लिखना है, इफ व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, तो हमको इतना ही लिखना है कि अगर हमारे पास 13 एलिमेंट है, इफ़ वी हैव 13 एलिमेंट देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आर 2, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आर 2। ओके, चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इफ a matrix has 18 element, what are the possible orders it can have, what if it has 5 elements। सिमिलर क्वेश्चन, अगर 18 एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर बना देते 1 2 3 4 नहीं होगा, 5 नहीं, 6 7 8 9 एंड 18, कितने पॉसिबल ऑर्डर है, कितने पॉसिबल फैक्टर है, तो कभी 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आर ऑल्सो 6, ये हो गया 18 के लिए। देन लेट मी हैव फॉर 5, अगर 5 है तो 1 and 5, number of possible orders are 2 only, clear। Then question 4, construct a 2 cross 2 matrix A equal to Aij, A equal to Aij whose elements are given by this। well इस तरह का क्वेश्चन भी हमने देख लिया था। चलो मैं एक बार पहला वाला सॉल्व करके दिखा देता हूँ वापस एक बार। Aij इक्वल टू I प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। इसमें हमको देखना क्या है कि ईयर वी हैव to find a matrix Aij having 2 cross 2 order, तो पहले हमको ये वाला मैट्रिक्स 2 cross 2 वाला मैट्रिक्स बना देना है, जैसे A11 A12 A21 A22। इसको कैसे बनाया जाए वो हमने अगले वीडियो में दिखा दिया था कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड सेकंड, फर्स्ट रो का एंड फर्स्ट कॉलम का, इसलिए 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसलिए A12, second row first column इसलिए A21, second row second column that is A22। now we need to find the value of all this element using this formula। so चलो A11 की वैल्यू क्या हो सकती है, पहले A11 पहला एलिमेंट A11 फाइंड करते हैं, तो I एंड J दोनों की वैल्यू हो गई 1 1, तो यहाँ पे रख देते हैं 1 + 1 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर 4 4/2 विच इज, एक बार वैल्यू रखता हूँ 1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर 4 4/2 दैट इज 2। ओके, A12 क्या होगा 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 दैट इज 3 स्क्वायर बाई 2 दैट इज 9/2। देन A21 क्या होगा 2 + 1 होल स्क्वायर बाई 2 विच इज अगेन 9/2 एंड A22 दैट इज 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 विच इज 4 स्क्वायर 16/2 8। सो फाइनली मैट्रिक्स क्या बन गया, तो भाई मैट्रिक्स बन गया 2 9/2 9/2 एंड 8। क्लियर। तो इसी तरह से आपको सेकंड
एंड थर्ड का भी मैट्रिक्स ऐसे 2x2 वाला बनाना है इन होमवर्क। ओके, ये होमवर्क में आपको सेकंड एंड थर्ड वाला आपको होमवर्क में आज ही करना है कंप्लीट। सिमिलरली क्वेश्चन 5 वैसे ही है, 3x4 मैट्रिक्स है, उस एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस वन। इसमें भी मैंने चलो हिंट बना दी A इक्वल टू AIJ, और मैंने 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं 3x4 का मैट्रिक्स आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। देन यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ AIJ, जो भी इसकी AIJ की वैल्यू आएगी, मतलब AIJ में A11 A12 जो भी आएगा उस इसी फॉर्मूला को यूज़ करके आपको खुद से बनाना है। सो 3x4 का बना देता हूँ। चलो ये पहले A11, देन A12, A13, A14। मैंने इसका A14 तक क्यों लिया, क्योंकि आई नीड टू टेक 4 कॉलम्स, मुझे 4 कॉलम तक जाना है। देखो 3x4 है ना, तो 4 कॉलम है एंड 3 रोज है, तो मुझे 3 रोज तक जाना है, A21 एंड A31। चलो A21, A22, A23, A24। वैसे अभी तो ये आदत बन गई, तुरंत निकल जाते हैं ये सब वर्ड। A31, देन A32, A33, A34। नाउ यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल दिस AIJ, ये सभी एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग दिस वन, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, दोनों को यूज़ करके फाइंड करनी है। यहाँ पे मोड है, तो मॉडुलस साइन का इसके अंदर जो भी आंसर है उसका नेगेटिव फॉर्म को पॉजिटिव फॉर्म बना के 2 से डिवाइड करके फिर आंसर जो भी आए वो बनाना है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस मोड एंड यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑल्सो। सो इसको भी मैंने होमवर्क में दे देता हूँ। चलो ईजी है, आउट है तो मुझे पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में। देन अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सिमिलर क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड टुडे ओनली, आज ही कंप्लीट किया हमने, लास्ट एग्जांपल जो भी दिया था वही। चलो अगेन पहला मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ कैसे ही है। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो XYZ की वैल्यू बनाए, कैसे बनाए, चलो 4 इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल बना दो। चलो 4 इक्वल टू Y, तो हो गया Y इक्वल टू 4 पहला वाला। देन 3 इक्वल टू Z हो गया, चलो ये सेकंड। देन X इक्वल टू 1 एंड 5 इक्वल टू 5 है ही। सो ये तीनों के आंसर बन गए। ये फर्स्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर। ये सेकंड वाले में x प्लस वाई इक्वल टू 6, फिर ये 2 एंड 2 तो इक्वल ही है, उसको कंपेयर करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। देन 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, सो z इक्वल टू से 0 एंड देन एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8। सो यूजिंग ये दोनों को यूज़ करके आप x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेना। कैसे करते हैं पता है ना? चलो दिखाई देता हूँ साथ में। वैसे तो 11th में बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा बना था कि चलो x एंड y दो एलिमेंट के समेशन या फिर दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म अगर दे दिया है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलो इसमें से मैंने किसी एक को सब्जेक्ट बना दिया, मतलब y इक्वल टू 8/x एंड आई हैव पुट इट इन फर्स्ट इक्वेशन। इसके अंदर रख देता हूँ y की जगह पे x प्लस 8/x इक्वल टू 6, सो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x। मैंने एलसीएम ले लिया एंड देन यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। ओके, वैसे यहाँ पे x की दो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी आएगी, 4 टू जा 8, सो इट इज़ 4 एंड 2। सो अगर x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू क्या हो गया, तो y इक्वल टू 2 होगा। यहाँ पे रखने से x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू क्या होगा, 8/4 2। और अगर x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू क्या होगा, तो y इक्वल टू 4 होगा। तो कौन सा ले इसमें, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर मैंने 4 रखी तो y की 2 रखी, 4 प्लस 2 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, और ये 4 टू जा 8। अगर मैंने यहाँ पे x की जगह 2 रखा और y की जगह 4 रखा, देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। सो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन, अगर मुझे एक्स वाई की ही वैल्यू पूछी, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है, तो इसका फाइनल हम ऐसा लिख सकते हैं आंसर, फाइनल आंसर हम एक्स वाई जेड इक्वल टू 4 2 एंड जेड इक्वल टू कितना है, 0। ओके, 4 2 0 एंड 2 4 0। ठीक है,
ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। इसके दो आंसर बने ना एक्चुअल में, 4 to 0 पॉसिबल है या फिर 2 4 0, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन थर्ड। कंपेरिजन से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। वाई प्लस जेड की वैल्यू इसके अंदर रख दोगे, देन यू कैन गेट एक्स। एक्स की वैल्यू इसके अंदर रख दोगे, देन यू कैन गेट जेड। एक्स की एंड जेड की वैल्यू वापस इसके अंदर रख दोगे, देन यू कैन गेट वाई। या फिर जेड की वैल्यू, सिर्फ जेड की वैल्यू इसके अंदर रख दोगे, देन यू कैन गेट वाई। सो इट इज़ अगेन सिंपल। क्वेश्चन 7, कंपेयर अगेन ऑल द पॉसिबल नंबर्स। a माइनस बी इक्वल टू -1 करो, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 करो, ये दोनों को सॉल्व करो, a b फाइंड करो। ये 2a प्लस सी इक्वल टू 5 एंड 3c प्लस d इक्वल टू 13। जैसे यहाँ पे a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी, वो उसको इसके अंदर रख के c फाइंड कर लो। c फाइंड हो जाएगा तो 3c प्लस डी इक्वल टू 13 में c रख के d फाइंड कर लो। क्लियर? एक बार और बता देता हूँ, a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके आप a एंड b बना दो। देन 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इसके अंदर a की वैल्यू रख के, a की वैल्यू यहाँ से इसके अंदर रख के आप फाइनली c फाइंड कर लो। एंड देन 3c प्लस डी इक्वल टू 13, c की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप बना सकते हो d। थोड़ा पिक्चरली मैंने बना के दिखाया है हिंट के लिए। कैलकुलेशन इज सो सिंपल, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग ऑल दिस कैलकुलेशन हियर। एग्जांपल 8, a इक्वल टू aij m क्रॉस n इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली ये दोनों सेम ही हो गए, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, सो m इक्वल टू n, सिंपल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9, which of the given values of x and y makes the following matrix pair of matrix equal। मतलब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो x and y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो सिंपल कंपेयर कर लो। 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, चलो लेट मी कंपेयर। 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -7/3, देन 5 इक्वल टू y माइनस 2, y इक्वल टू 7, y plus 1 equal to 8, then y equal to 7, okay, it is also there। हाँ, वैसे कभी कभी ऐसा होगा कि sometime it is possible कि यहाँ पे y की वैल्यू और यहाँ पे एक y की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल ही नहीं है। मतलब ऐसे कोई ऑप्शन हो सकता है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि वो उसमें x एंड y की वैल्यू फाइंड ही नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज वी कैन नॉट कंपेयर दिस टू मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्स को कंपेयर ही नहीं कर सकते। ऐसी कोई x एंड y की वैल्यू रहेगी ही नहीं जिसमें ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। वाई? बिकॉज ये सभी में मैंने बताया था, सभी में बीच में एंड है। ठीक है, अब लास्ट वाला 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया, 3x इसको इस तरफ लेके जाते हैं, 4 को इस तरफ लेके जाएंगे। सो 3x इक्वल टू 2 माइनस 4 विच इज़ -2। ओके, जैसे मैंने बताया था वैसे ही सिचुएशन आ गई। देखो y तो इक्वल आ गया था, बट x इज़ नॉट इक्वल इन दिस टू कंडीशन। अगर x इक्वल नहीं है तो मैंने बताया था बीच में एंड है, मतलब इंटरसेक्शन मतलब ये और ये दोनों सेम होने चाहिए, इसके और इसके आंसर सिमिलर होने चाहिए। मतलब दोनों कंडीशन एक साथ में होल्ड करनी चाहिए। वैसे दोनों कंडीशन एक साथ में होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि एक साथ में x की वैल्यू -7/3 एंड -2/3 पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दिस, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई वी कांट से that any value of x and y can hold these two equations. So the final answer is not possible to find. Confusion हो सकता है मुझे, अगर है तो नेक्स्ट लेक्चर में बताना। फिर से बता देता हूँ क्या हुआ इसमें। अगर हम फाइंड करने जा रहे हैं, कभी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल करके x y z की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो जितनी भी कंडीशन है सभी कंडीशन के बीच में एंड लिखा है, मैंने थियरी में बताया था। एंड का मतलब ये होता है कि सभी कंडीशन एक साथ में होल्ड करनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, लास्ट वाली कंडीशन एक साथ में होल्ड नहीं करेगी। उसका रीज़न है एक साथ में x की वैल्यू -7/3 एंड -2/3 दोनों पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स व्हाट कि x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जिसकी वजह से ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है।
थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू -7/3 ले ली तो ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। x की वैल्यू -7/3 यहाँ पे रख देता हूँ मैं, तो ये 0 हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि x इक्वल टू -7/3 देन 3x + 7 इक्वल टू 0। सो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 इक्वल टू 0 बन जाएगा। बट यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू -7/3 रखी वही सिचुएशन में, तो ये 4 नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट, कि ये दोनों मैट्रिक्स कैसे बने मैं बता देता हूँ। चलो, कि ये पहला वाला मैट्रिक्स बन गया 0, फिर ये 5, फिर y + 1 दैट इज 7 + 1 8। चलो, और यहाँ पे भी दूसरा वाला मैट्रिक्स भी यही बन जाएगा 0 5 8, है ना। इक्वल है कि नहीं वो चेक करते हैं। अब तक तो इक्वल लग रहा है कि चलो 3x + 7 में x की जगह -7/3 रखा तो ये 0 बना, इसलिए 0, और ये तो 0 है ही इसलिए 0। ये 5 है, ये 5 है, ओके। और y की वैल्यू 7 रखने से 7 - 2 5, सो ये भी 5। y + 1 = 8, सॉरी 7 + 1 = 8, तो ये 8, इसलिए इस तरफ 8, और यहाँ पे तो 8 है ही इसलिए ये भी 8। देन ये दोनों में ये वाला 4 है, इसलिए इस तरफ का तो 4 लिख देता हूँ मैं पहले से ही। इसमें अगर मैं x की जगह पे -7/3 रखूँ तो चलो 3 3 कैंसिल, 2 - 3 × -7/3, 3 3 कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस 2 + 7 दैट इज़ 9, सो ये हो गया 9। सी, ये दोनों तो इक्वल हुए ही नहीं। और मैट्रिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से, इक्वलिटी की डेफिनेशन के हिसाब से, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दैट इज़ वाई ये दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते। x की ये वैल्यू के लिए तो नहीं हो सकते, x की -7/3 वैल्यू के लिए इक्वल नहीं हो सकते। इट मीन सिमिलरली x की -2/3 वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी क्योंकि x की वैल्यू -2/3, तो ये हो गया 4, तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बट उसके लिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इट मीन्स कि x = -2/3 रखने से ये वाला 0 नहीं होगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इट मीन्स कि x की ऐसी कोई वैल्यू आई ही नहीं, y की वैल्यू बन गई, बट व्हाट वी नीड टू फाइंड इज सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन में x एंड y दोनों की वैल्यू आती है, तो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं बनी जिसकी वजह से ये दो मैट्रिक्स इक्वल आए। दैट इज वाई सॉल्यूशंस आर नॉट पॉसिबल। ओके, सो मैंने ये थोड़ा डिटेल्ड में समझाने की कोशिश की है क्योंकि मैं भी कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर डिटेल में नहीं भी समझ में आए तो भी मैंने बताया जो रूल्स वही याद रखना है। क्या कि ये चलो चेक नहीं भी करोगे आप एग्ज़ाम में चलेगा। वाई? बिकॉज हमको सिर्फ एग्ज़ाम में यही दिखाना है कि यही सोचना है कि जो भी 4 कंडीशन या फिर जितनी भी कंडीशन है इक्वलिटी होल्ड करने वाली, वो सभी कंडीशन एक साथ में होल्ड करनी चाहिए। बीच में एंड है उसका मतलब सभी साथ में होल्ड करनी चाहिए। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं आनी चाहिए जिसमें दो कंडीशन कन्फ्लिक्ट हो, मतलब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन वायलेट हो, जैसे यहाँ पे हो रही है कि फर्स्ट वाली एंड लास्ट वाली कंडीशन एक साथ में पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई we cannot equalize these two matrix. That is what the simple task we need to check. Okay, example 9, question 9 हो गया। question 10, the number of all possible matrices of 3 × 3 with each entry 0 or 1। वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें PNC का यूज़ होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। कैसे, तो मैं दिखा देता हूँ, समझ लो। यहाँ पे 3 × 3 वाले मैट्रिक्स की बात की ना उन लोग ने। चलो, तो 3 × 3 वाले ऐसे 9 एलिमेंट होते हैं, और उसने बोला है कि इसमें मैं 0 या फिर 1 यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं एक PNC वाली सिचुएशन एक बार याद करवाता हूँ कि समझ लो मुझे कोई नंबर बनाने हैं 4 डिजिट वाले, या फिर चलो हाँ 4 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। तो कितने नंबर पॉसिबल है? तो कोई बंदा बोलेगा सर इसमें चलो रख दो, पहला नंबर 0 पॉसिबल नहीं है, बाकी सब तो पॉसिबल है ना, 1 2 3 4 अप टू 9, सो आई कैन पुट एनी 9 में से कोई भी एलिमेंट रख सकता हूँ। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो मैं यहाँ पे 0 भी यूज़ कर सकता हूँ, और बाकी 1 से 9 तो है ही, मतलब यहाँ पे मैं 0 से लेके 9 तक के सभी यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए आई कैन पुट 10। अगेन आई कैन पुट 10 ओवर हियर ऑल्सो बिकॉज रिपीटेशन अलाउड, ऐसा सोच लेता हूँ। चलो, तो ये सभी 10 10 बन के मैं सभी का मल्टीप्लिकेशन करके आपको फाइनल आंसर बताता था PNC में। वही सिचुएशन यहाँ पे आ गई। ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बस ऐसा लिख दिया है कि सभी एंट्री 0 या फिर 1 होनी चाहिए। मतलब रिपीटेशन सिंपली अलाउड हो गया, मतलब कोई जगह पे समझ लो यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे 1 आ सकता है, यहाँ पे 0 आ सकता है। 0 या फिर 1 हो सकता है, 0 या फिर 1 हो सकता है, उसका मतलब ये हुआ कि रिपीटेशन तो अलाउड होगा, क्योंकि
ऐसा तो है नहीं कि चलो यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। चलो मैं सिचुएशन दिखाता हूँ, ये 0 रख दिया, ये 1 रख दिया। अब दूसरा कोई नंबर ही नहीं है कि मैं इसमें रख सकूँ, तो मुझे यहाँ पे या फिर 0 या फिर 1 कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। सो रिपीटेशन इज अलाउड। ये तो सिंपल सी चीज़ है, वो पता चल गई कि रिपीटेशन अलाउड है। अब क्या क्या रख सकते हैं ये सभी बॉक्स में, जैसे यहाँ पे ये सभी बॉक्स में क्या क्या रख सकते हैं, तो जैसे ये सभी बॉक्स में क्या क्या रख सकते थे, तो जितने पॉसिबल नंबर लिख सकते हैं उतने पॉसिबल नंबर, उसने नंबर ऑफ पॉसिबल उतने नंबर लिखते थे हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 1 से 9 तक का सभी पॉसिबल है इसलिए 9, फिर यहाँ पे 0 से 9 तक के 10 नंबर पॉसिबल है इसलिए 10, ऐसे। वैसे यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 ही यूज़ हो सकता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ सिर्फ 2। आई कैन यूज़ 0 और 1, यहाँ पे भी आई कैन यूज़ 0 और 1, यहाँ पे भी आई कैन यूज़ 0 और 1, 2 2 2 2 2 2। I can use only 0 or 1 in each and every place. So how many numbers of possible matrix are here? तो वैसे यहाँ पे जैसे हम सभी जितने भी पॉसिबल है उतने सभी के मल्टीप्लिकेशन करते थे, वैसे ही यहाँ पे 2 2 2 सभी का मल्टीप्लिकेशन कर लो। कैसे, कितनी बार होगा? 2 2 2 2 रेज़ टू 9, तो हो जाएगा 512, 212। यही फाइनल आंसर है। अगर समझ में ना आया तो मुझे वापस पूछना एक बार, बट ये क्वेश्चन पीएनसी के पॉकेट में से लिया है हम लोग ने, मैट्रिक्स का क्वेश्चन, बट यूज़ है पीएनसी का। सो दिस इज़ व्हाट अगेन सिंपल टास्क। मैंने होमवर्क में थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको दिए हैं, थोड़ी बहुत हिंट दे दी है बहुत सारे थोड़े बहुत क्वेश्चन में। सो आप उसको भी कंप्लीट करके आप एक बार एक्सरसाइज भी लिख लेना, और आज तक की जो भी थियरी है बराबर से एक बार रेफर करके उसको लिख के फेयर बुक में एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलो, और कोई डाउट सेशन है, कोई डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली वो डाउट को सॉल्व करेंगे। क्लियर? थैंक यू।